Hello everyone, I am Bhavna Mishra Pandey and I welcome you all in my English class. And in today's class, we are going to do textual question answers of the chapter Advanced Tries and O Level by Colin Dexter. So let's start with question number 1. What kind of a person was Evans? So students, James Roderick Evans was his full name. He was a jailbird. Jailbird means who has been jailed repeatedly, and you know very well he broke the jail thrice. He escaped from prison thrice and repeatedly he was jailed inside. At present he was in a solitary cell in Oxford prison. So where was he? He was in the solitary cell in Oxford prison. He was quite a pleasant sort of chap. Now come to this word chap. You know students, this word has been used since 18th century, okay, which means a boy, a man you can say. So he was an amusing person who was good at imitations. He was not at all violent, हिंसक भी नहीं था. He was just a congenital kleptomaniac. Students, this is you can say a physical abnormality and present from birth. Okay, for stealing something you can say. Okay, he had this tendency of stealing things since his birth. It means he suffered from the disease of involuntarily stealing things. उसकी आदत में शुमार था ये कि वो कोई भी चीज़ कभी भी चुरा लेता था. This disease with which he was born. B-O-R-N. This is B-O-R-N. Alright guys. Now next question. What were the precautions taken for the smooth conduct of the examination? So what were the precautions taken? So the solitary cell of Evans was turned into examination room by placing 2 small tables and 2 chairs in it. So it was completely changed into a classroom. And this permission has already taken from the Board of Secondary Education. वहाँ से ये परमिशन ली गई थी कि इवेंस का एग्जाम कहाँ पे होगा, उसकी सेल में होगा. देयर वॉज नो बडी. वो सॉलिटरी सेल मीन्स वो अकेला ही था वहाँ पे, अलोन. एंड रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी. रेवरेंड स्टूडेंट्स, दिस वर्ड इज यूज्ड मीन्स एक तरह से आप कह सकते हैं किसी को भी रेस्पेक्ट देने के लिए, होली यू कैन से. तो स्टुअर्ट मैक्लेरी वॉज अ पार्सन फ्रॉम सेंट मैरी मैग्स एंड ही came there as an invigilator. The cell was to be kept locked from outside and prison officer would observe Evans from a peephole after every minute or so. तो वहाँ पे एक prison officer को appoint कर रखा था किस चीज़ के लिए? To watch everything. All potential weapons such as knife, scissors, nail file and razor had been taken away. किस लिए? So that कि इंजर्ड ना कर सके किसको? मैक्लेरी को. इवेंस मैक्लेरी को किसी भी तरह से इंजर्ड ना कर सके. Evans was even the contents of the suitcase of the invigilator were thoroughly searched. The paper knife was taken away by a prison officer. So when from the St. Mary Mag's चर्च से जब वो आए, कौन? स्टुअर्ट मैक्लेरी आए, तो उनका सूटकेस जो था दैट वाज आल्सो कंप्लीटली सर्च्ड. उसको भी सर्च किया गया एंड दैट वाज हैविंग अ पेपर नाइफ एंड दैट वाज आल्सो टेकन अवे. उसको भी ले लिया गया. द गवर्नर हिमसेल्फ वाज टू लिसन इन द कॉन्वर्सेशन इन द सेल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. गवर्नर हिमसेल्फ वाज देयर टू लिसन एवरीथिंग वॉट एवर वाज गोइंग ऑन इन द एग्जामिनेशन cell. The cell was in the D wing, which had 2 heavy gates, outer and inner. These were the precautions they were taking. Heavy gate was there from outside and from inner. Both were locked securely. बहुत अच्छे से locked थे. Mr. Jackson, the prison officer, was in constant contact with the governor on phone. So these were the things. These were the precautions they were taking. Next question.
Will the exam now go as scheduled? जैसे एग्जामिनेशन का शेड्यूल था उसके अकॉर्डिंग वो हुआ. द 2 hour examination in O-level German was scheduled to begin at 9:15 a.m. on Tuesday 8th June. So this was the schedule decided for the exam, for the O-level German exam. However, it started a bit late at 9:20 a.m. Students, this time syllabus is very low. I'm telling about 2020 and 21 सेशन. एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत कम है एंड आपसे बहुत सारे MCQs डीपली पूछे जाएंगे. थरली आपको रीड करना होगा. दैट्स व्हाई आई हैव गिवन ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इन माय क्वेश्चन आंसर सेक्शन एंड इन द समरी सेक्शन. आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द चैप्टर. So, events objected to the presence of Stephens at a prison officer in the examination room. Actually, you know what happens whenever you write your paper in the examination room, if any sir or any ma'am comes in front of you or beside you, कोई खड़ा हो जाता है आके, तो आप disturbance feel करते हो. The same happened there with Evans. He was feeling some obstacle, or you can say he was feeling that disturbance. That's why he said, please don't stand here. And under the orders of the governor, Stephens was got out of the cell. So at 9:40 a.m. a correction slip was dictated to the candidate. अब candidate, who was the candidate? Candidate was Evans. तो एक correction slip वहाँ से आई and in that slip what was written? Means first of all some instructions were given कि how he has to fill the index number 1, 2, 3 like this. Some instructions were given to him. After that correction slip was there. In that it was golden and loyan something it was written. So correction slip, as in your examination when you were in small classes, when you were in junior classes, तो आपकी टीचर आया करती थी, I think this word is mistaken, so instead of this you write this like this, no? तो वैसे ही उसको भी dictate करवाया गया. At 10:50 a.m. Evans complained of bitter chill and made a request for putting a blanket round his shoulders. तो उसने रिक्वेस्ट की. एक्चुअली वो जो जगह थी उसकी सेल, वहाँ पे सर्दियों के टाइम पे भी धूप नहीं आती थी और अभी तो मार्च का टाइम था तो उसको चिल, उसको सर्दी फील हो रही थी. दैट्स व्हाई ही आस्क्ड फॉर अ ब्लैंकेट. सो at 11:20 a.m. McClary informed Evans that only 5 minutes remained. So this was, ऐसा आपके साथ भी होता है, before the examination and in between the examination all the teachers instruct you that this much time is remaining, 1 hour is remaining, 20 minutes left, like this. The same was there. At 11:22 a.m. Jackson called Stephens to the phone. The governor was online and Stephens was given orders to escort McClary to the main prison gate. What happened when the exam was over? Stephen himself went to escort McClary to the prison gates. The examination was over at 11:25 a.m. The door of the cell was locked on Evans after McClary had left the cell. तो इवांस की जो सेल थी उसका गेट भी बंद कर लिया गया जब वहां से मैक्लेरी चले गए. दिस द एग्जामिनेशन वेंट ऑन स्मूथली एज शेड्यूल्ड. तो इस तरह से एग्जाम जैसा उन्होंने डिसाइड किया था वैसे ही शेड्यूल्ड टाइम में पूरा हो गया. सो डिड द गवर्नर एंड हिज स्टाफ फाइनली हीव अ साई ऑफ रिलीफ. क्या उन्होंने चैन की सांस ली? The governor heard the door of the cell clang for the last time. So when the exam was over, after that उन्होंने गेट को बंद होते हुए सुना. The examination was over. Stephens escorted McClary to the main gate. Stephens छोड़ने के लिए गए McClary को main gates तक. His Scots accent seemed broader and seemed to have grown slimmer under his long black overcoat. और मैक्लेरी को जब वो छोड़ने जा रहे थे उनको वहाँ पे कुछ गड़बड़ दिखाई दिया. किसके बारे में? फर्स्ट फॉर द स्कॉटिश, उनका बोलने का जो तरीका था इन दैट, एंड अनदर वन जो वो थोड़े स्लिम दिख रहे थे अपने ब्लैक लॉन्ग ओवरकोट में. स्टीफेंस वॉज हैप्पी दैट द मॉर्निंग हैड गॉन प्रेटी वेल एंड ही वॉज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ. क्यों स्टीफेंस को अपने आप पे प्राउड क्यों हुआ? क्योंकि गवर्नर ने उनको चुना किस चीज़ के लिए? मैक्लेरी को गेट तक छोड़ने जाने के लिए. इन शॉर्ट द गवर्नर एंड हिज स्टाफ फाइनली हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ. बट चैन की सांस तो ली, लेकिन क्या हुआ? देयर रिलीफ हाउएवर शॉर्ट लिव्ड. क्योंकि बहुत जल्दी ही उन्होंने जो चैन की सांस ली थी, जो रिलैक्स फील कर रहे थे, वो ज़्यादा देर तक चला नहीं. ऑन रिटर्निंग टू द सेल ऑफ इवांस, स्टीफेंस फाउंड अ पर्सन स्प्राउलिंग बैक इन अ चेयर.
उन्होंने क्या वापस आके चेक करने के लिए देखा तो क्या था, ब्लड ड्रिप्ड फ्रॉम हिज क्लोजली क्रॉप्ड फ्रंट पार्ट ऑफ हेड ऑन टू हिज स्मॉल ब्लैक बियर्ड एंड ओवर हिज वाइट क्लैरिकल कॉलर डाउन इनटू द ब्लैक क्लैरिकल फ्रंट. So what happened when he once again came there to search for Evans? What happened? Evans was not there. There was a person. He was wearing, कैसे कपड़े पहने हुए थे उन्होंने, वैसा ही वाइट वो जो ओवरकोट एंड जैसा सेंट मैरी मैग्स के चर्च के पार्जन ने कपड़े पहने हुए थे, लाइक दोज वैसे कपड़े पहने हुए थे. एंड उसकी बियर्ड के ऊपर से वहां से बहुत ज्यादा ब्लडिंग हो रही थी. स्टीफन शाउटेड वाइल्डली फॉर जैक्सन. स्टीफन बहुत जोर से चिल्लाए जैक्सन के लिए. इट वॉज सस्पेक्टेड दैट इवांस हैड हिट मैक्लेरी एंड दे थॉट, उन्होंने सोचा कि इवांस ने मैक्लेरी को हिट कर दिया है. एंड ही वॉकड आउट impersonating him. impersonating means अपने आप को छुपा के वो बाहर चला गया. एंड मैक्लेरी जो है उस चेयर पे कौन है, मैक्लेरी. अ सर्च बिगिन फॉर इवांस ड्रेस्ड एज अ पार्जन. अब उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि इवांस ने किसके कपड़े पहन रखे हैं. उन्होंने सोचा कि इवान जो अभी जिसको एस्कॉर्ट किया था, बाहर छोड़ करके आए थे स्टीफन्स, वो कौन था, वो था इवांस. किसके कपड़े पहन के चला गया वो सेंट मैरी मैग से जो चर्च से जो इन्वेजिलेटर आए थे स्टुअर्ट मैक्लेरी, उनकी ड्रेस पहन के वो वहां से बाहर निकल गया. एंड इसके बाद क्या हुआ, सर्च शुरू हुई किसकी, इवांस की. जबकि वो था कौन, जो वहां पे बियर्ड से ब्लडिंग हो रही थी, वो कौन था, वो खुद इवांस था. ओके, वहां पे इवांस ही था. Will the injured McClary be able to help the prison officer track Evans? क्या वो मैक्लेरी जो वहाँ पे इंजर्ड पोजीशन में दिख रहा था, क्या वो इवांस को ट्रैक करने में हेल्पफुल रहा? So injured McClary spoke slowly and in broken phrases that he knew where Evans was. He tried himself. उसने सोचा कि मैं, वो क्या कर रहा था, वो हेल्प करने की कोशिश कर रहा था ब्रोकन सेंटेंसेस में. एंड ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आई एम इंजर्ड होने के बाद भी मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ. ही आस्क्ड द प्रिजन ऑफिसर्स टू गेट द पुलिस एंड नॉट टू वरी अबाउट एम्बुलेंस. और वो चाहता था, मतलब मैक्लेरी के फॉर्म में एक्चुअली स्टूडेंट्स वहाँ पे कौन था, इवांस हिमसेल्फ वाज देयर. इवांस खुद था. एंड वो उनको चकमा देने के लिए क्या सोच रहा था, वो बता रहा था ब्रोकन सेंटेंसेस में, उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहा था. एंड कह रहा था कि आप अपना काम कीजिए, पुलिस को कहा कि आप अपना काम कीजिए, डोंट वरी अबाउट मी एंड द एम्बुलेंस. एम्बुलेंस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है. ही फाउंड द जर्मन क्वेश्चन पेपर ऑन द टेबल. एंड उसने एक जर्मन क्वेश्चन पेपर दिखाया किसको, ही टोल्ड जैक्सन टू गेट द गवर्नर. एंड जैक्सन को बोला कि वो गवर्नर को बुलाए. ही ड्रू द अटेंशन ऑफ द गवर्नर टू द जर्मन टेक्स्ट ऑन फोटोकॉपीड शीट ऑन द लास्ट पेज. द गवर्नर स्लोली ट्रांसलेटेड इट. नाउ व्हाट हैपेंड, उसके ऊपर बहुत सफाई से क्लीनली एक फोटोकॉपीड शीट पेस्ट थी जिसपे सारा उनका प्लान लिखा हुआ था. एंड गवर्नर ने ट्राई किया किसको, उस प्लान को ट्रांसलेट करने के बारे में. ट्रांसलेट मीन्स उसको डिकोड करने का सोचा. सो The word from Elsfield Way drive to the Haddington roundabout caught his attention. तो वहाँ पे ये जो words लिखे हुए थे, कौन से words, from Elsfield Way, यहाँ से यहाँ तक, इन वर्ड्स ने क्या किया, उसका अटेंशन अपनी तरफ किया, उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया. एंड द एग्जामिनेशन बोर्ड वाज इन एल्सफील्ड वे. तब उसने सोचा कि एग्जामिनेशन बोर्ड कहाँ है, वो एल्सफील्ड वे में है. मीनवाइल द पुलिस अराइव्ड बिफोर द गवर्नर कुड एक्सप्लेन एनीथिंग. मैक्लेरी टोल्ड द ऑफिसर टू गो एल्सफील्ड वे. और कोई कुछ कहता इससे पहले मैक्लेरी जो कि वहाँ इंजर्ड पोजीशन में थे, उन्होंने क्या कहा कि आप एल्सफील्ड वे जाइए. The governor told Detective Superintendent Carter to take injured McClary with him. और उन्होंने उसको क्या बोला कि आप इसको hospitalized करो. किसको, मैक्लेरी को. And he helped the police to follow the direction indicated in the German text. So, next question is, will the clues left behind on the question paper put Evans back in prison again? तो क्या जो clues थे, उसने पीछे जो clues छोड़े थे क्वेश्चन पेपर पे लिखे हुए, क्या उनकी वजह से इवांस को दोबारा से जेल में लाने में वो हेल्पफुल रहा, वो सारे क्लूज. सो द टेक्स्ट ऑन द लास्ट पेज ऑफ द जर्मन क्वेश्चन पेपर कंटेन्ड द प्लान ऑफ एस्केप. उस लास्ट पेपर पे जो फोटोकॉपीड शीट पेस्ट की थी, वहां पे जो प्लान था वो किस चीज का प्लान था, उसमें सारा एस्केपिंग का प्लान था.
इट हैड इंपॉर्टेंट क्लूज ऑफ द रूट, उस रूट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्लूज उसमें थे. फ्रॉम एल्सफील्ड वे द पर्सन हैड टू ड्राइव टू द हेडिंगटन राउंड अबाउट, और उस पर्सन को कहाँ से कहाँ जाना था, एल्सफील्ड वे से हेडिंगटन राउंड अबाउट, एंड फ्रॉम देयर टू न्यूबरी. आफ्टर सम टाइम सुपरिंटेंडेंट कार्टर इन्फॉर्म्ड द गवर्नर और फोन दैट मैक्लेरी हैड स्पॉटेड इवांस ड्राइविंग ऑफ अलोंग एल्सफील्ड वे. और सुपरिंटेंडेंट कार्टर के साथ कौन थे, मैक्लेरी. तो उन्होंने क्या बताया कि मैक्लेरी ने देखा है किसको, इवांस को, कि वो एल्सफील्ड वे की तरफ जा रहा था ड्राइव करके. दे हैड गॉट द नंबर ऑफ द कार ऑल राइट एंड गिव चेज एट वंस, एंड उन्होंने कार का नंबर लिया एंड क्या किया, उसके पीछे अपनी कार लगा दी, चेजिंग करना शुरू कर दिया. बट दे हैड लॉस्ट हिम एट द हेडिंगटन राउंड अबाउट, लेकिन हेडिंगटन राउंड अबाउट में इवांस कहाँ खो गया पता ही नहीं चला. सिंस मैक्लेरी फेल्ट क्वाइट वीक when they got to the examination offices they rang Redcliffe for the ambulance. अब क्या हुआ, मैक्लेरी जो कि इंजर्ड थे, वो लग रहा था कि वो मैक्लेरी है, लेकिन वो हिमसेल्फ जो पर्सन उनको गाइड कर रहा था दैट वाज नॉट मैक्लेरी. यू गाइस यू नो वेरी वेल, आपने पहले वाला वीडियो देखा है, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैक्लेरी को तो उसके अपार्टमेंट में ही, उसके रूम में ही बंद कर दिया गया था, मैक्लेरी तो पहुंचा ही नहीं था. एंड मैक्लेरी की फॉर्म में ये कौन था हु वाज इंजर्ड ओवर देयर, ही वाज इवांस हिमसेल्फ, जिसने इंपर्सनेट कर रखा था, छुपा रखा था अपने आप को, किसकी फॉर्म में, मैक्लेरी के वेश में अपने आप को बदल लिया था. एंड ही वाज नॉट इंजर्ड टू, वो इंजर्ड भी नहीं था, वो सिंपल नाटक कर रहा था. ही वाज प्रिडिक्टिंग, वो क्या कर रहा था, वो सिंपल एक ऐसे नाटक कर रहा था, प्रिटेंडिंग नॉट प्रिडिक्टिंग, ही वॉज प्रिटेंडिंग, वो नाटक कर रहा था किसका, ऐसे इंजर्ड होने का. और वो जो ब्लड उसने लगा रखा था दैट वाज पिग्स ब्लड, वो ब्लड भी पिग का था. और यू नो वेरी वेल कि पिग का जो ब्लड होता है वो बहुत गाढ़ा होता है, तो उसमें कोई सोल्यूशन मिला के उसको ह्यूमन ब्लड जैसा वो थिक हो जाता है, इसलिए उसको क्या करा था, कुछ सोल्यूशन मिला के उसको क्या कर दिया, उसको पतला कर दिया. एंड यहाँ पे मैक्लेरी जो था, यानी कि मैक्लेरी के फॉर्म में कौन, इवांस, वो ये दिखा रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गया हूँ. एंड वो उसको बोला गया कि वहाँ पे उसको रेडक्लिफ हॉस्पिटल में एम्बुलेंस भेज दो, एम्बुलेंस के साथ उसको भेज दो. दे लेफ्ट मैक्लेरी ऑन एल्सफील्ड वे. अब मैक्लेरी के फॉर्म में जो इवांस था उसने क्या बोला कि मुझे कहाँ भेजो, एल्सफील्ड वे, मुझे कहाँ भेज दो, मुझे रेडक्लिफ हॉस्पिटल भेज दो. Thus the injured Macleary who had posed to help the authorities disappeared and Evans remained untracked. अब क्या हुआ यहाँ पे, मैक्लेरी जो कि अथॉरिटीज की हेल्प कर रहा था वो भी वहां से डिसअपियर हो गया, एंड जिस इवेंट्स को वो देख रहे थे वो भी अनट्रेस्ड, उसको भी वो पकड़ नहीं पाए. द अदर क्लूज इंडेक्स नंबर 313. स्टूडेंट्स, जब भी आपको कुछ भी पेपर होता है तो आपकी टीचर आपको बहुत सारे सो मेनी इंस्ट्रक्शंस वो गिवन टू यू, आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं. एंड यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस थे वो क्या थे, इंडेक्स नंबर 313, सेंटर नंबर 271, गोल्डन लॉयन, ऑल दीज वर्ड्स हैड अ डीप मीनिंग. इन सारे वर्ड्स का डीप मीनिंग था. एंड वो क्या था, वो एक 6 फिगर का रेफरेंस नंबर था जिससे ब्रॉट हिम इन द मिडल ऑफ चिपिंग नॉर्टन, जिससे वो पहुंच सके थे कहाँ पे, चिपिंग नॉर्टन के मिडल में पहुंचने का ये एक कोड था. ही फाउंड इवांस इन द गोल्डन लॉयन इन चिपिंग नॉर्टन. एंड उन्होंने इवांस को बाद में कहाँ पाया, कहाँ मिला, वो गोल्डन लॉयन में, चिपिंग नॉर्टन में. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड इवांस गो, इवांस कहाँ चला गया था. इवांस लेफ्ट द प्रिजन डिस्गाइज्ड एज पार्सन मैक्लेरी हु हैड बीन इंजर्ड बाय द एग्जामिनी इवांस. सो इवांस लेफ्ट द प्रिजन, इवांस ने प्रिजन जो था अपने आप को मैक्लेरी के फॉर्म में, इवांस लेफ्ट द प्रिजन डिस्गाइज्ड एज पार्सन मैक्लेरी हु हैड बीन इंजर्ड बाय द एग्जामिनी इवांस. तो उसने क्या किया, वो चला गया वहां से. ही प्रिटेंडेड टू गाइड द अथॉरिटीज, एंड वो क्या कर रहा था, वो नाटक कर रहा था कि वो अथॉरिटीज को हेल्प कर रहा है, कि वो इवांस को ट्रैक करने में हेल्प कर रहा है. व्हेन द पुलिस कार रीच द एग्जामिनेशन ऑफिस ऑन एल्सफील्ड वे, मैक्लेरी जो कि इवांस के रूप में छुपा हुआ था, वो मैक्लेरी खुद नहीं था, उसने अपने आप को छुपा रखा था. ग्रॉग्ड, an ambulance was called in from the Redcliffe and he was left there. तो उसने क्या किया, एम्बुलेंस बुलाई गई, and in
और वहाँ पे रेडक्लिफ हॉस्पिटल में उसको भेज दिया गया। इवेंस गॉट इनटू अ कार एज अरेंज्ड बिफोर हैंड, और वहाँ से इवेंस ने क्या किया, एक कार जो पहले से अरेंज थी उसके लिए, उसमें वो चला गया। इट हैड सोप, वाटर, क्लोथ्स एंड अ मैप, एंड उस कार में इवेंस के लिए सारा सामान था, जिसमें कि उसने जो फॉल्स बियर्ड लगा रखी थी, क्योंकि मैक्लेरी के फॉर्म में था ना वो वहाँ पे। मैक्लेरी जो कि इंजर्ड पोजीशन में कहाँ पे था, सेल में था। अब वहाँ से जब उसको ये कहा गया कि आपको हम हॉस्पिटल ले जाते हैं, रेडक्लिफ हॉस्पिटल, तो क्या किया उसने, कहा कि यू डोंट वरी अबाउट मी एंड यू गो बिहाइंड इवेंस, आई विल ट्राई, मतलब मैं अपना आई केयर माई सेल्फ, मैं अपना ध्यान खुद रख लूँगा। तो वहीं से एक कार अरेंज थी जिसमें इवेंस चला गया, एंड उसके अंदर जाके उसने सोप, वाटर, क्लॉथ सब कुछ चेंज करके अपना गेटअप पूरा सही कर लिया। ही रिमूव्ड ब्लड स्टेन्स फ्रॉम हेयर, पील्ड द फॉल्स बियर्ड, अपनी फॉल्स बियर्ड जो उसने झूठी बियर्ड लगा रखी थी उसको हटा दिया, ब्लड के स्टेन्स जो थे उनको हटा दिए, उसने अपने चेंज थे क्लॉथ्स जो थे वो भी चेंज किए, पुट ऑन अ स्मार्ट न्यू हैट, और एक नई हैट लगा ली। Then they drove to the Golden Lion in the middle of Chipping Norton. He was traced in the hotel by the governor of Oxford prison following the clues in the German text on the German question paper. लेकिन फिर भी उसको गवर्नर ने ट्रेस कर लिया था, उस क्वेश्चन पेपर पे लिखी हुई लैंग्वेज को डिकोड कर लिया था। So guys, in the next video we will discuss some additional question answers. So must watch the next